Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I am Ms. Sadia Iqbal. On behalf of Garrison Academy Senior Campus, welcome you all to AppSex Online Support Program. As you all know that this is our 13th week, and this is Monday, day 1. So let us get started with today's lecture. Today, inshallah, we will be completing our exercise 3.3. Yeah, I know there are so many questions which are left of exercise 3.3, but this exercise is very important, and inshallah today we'll be doing it in detail, and we will be using substitution method too in some of the questions, right? You all have to do practice of each question at least twice, no matter what. So let us get started. See, this is the exercise, and if you remember, this question and these two questions were left. These question number 8, both parts are very, very important, so you cannot miss any of this. And this is the remaining exercise, of which this question and this question were left, and then this one, and then right from 17th up till 22, these all were left. Let us get started. Firstly, I'll be starting with this question number 19, 20, because these two questions were related to your previous lecture. Look at this, cos of this something, this thing which is the angle of cos, into this into dx, right? So all you have to do is you have to see, okay, let पहले तो आप हमेशा इंटीग्रल के क्वेश्चन में, इंटीग्रेशन के क्वेश्चन में यू हैव टू लुक फॉर सम डेरिवेटिव, कि किसी फंक्शन जो गिवन है उसका कोई डेरिवेटिव कहीं आसपास मौजूद है या नहीं. दिस शुड ऑलवेज बी योर प्रायोरिटी. नाउ लुक एट दिस, रेडिकल ऑफ x minus x over 2. What if I take it as t, right? Now what am I going to do? I'll be taking differential on both sides, differential of this and differential of this. So this would become, इसका differential क्या बनेगा, 1 divided by 2 1 divided by 2 जो इसकी पावर है, to radical of x. You people should remember this from the differentiation, okay, into dx, because this is differential, minus x का derivative is 1 divided by 2 into dx, because this is differential, equals to dt. Clear? Okay, now what? Take out dx and 1 divided by 2 common. What do I have for inside? I do have this thing, 1 divided by radical of x minus 1 equals to dt. Oh my god. Now what? Can you see this thing here in the bracket? So what if, because when we do substitution, तो हमने पूरा क्वेश्चन, अगर मैंने t के इक्वल लिया इस पार्ट को, तो आई हैव टू कन्वर्ट द होल क्वेश्चन, द होल इक्वेशन इन माई t, right? So this dx should also be converted into t, यानी dt. So now look at this. What if I keep this bracket over here और ये 2 मैं ले जाऊँ दूसरी साइड पे? So this would become dx into 1 divided by radical of x minus 1 equals to 2 dt. Now all I have to do is I will be putting this whole thing equals to 2 dt and this angle equals to t from this. ये तो हमारी substitution होगी, but remember boys and girls, our answer should again be in the form of x, यानी जो हमारा आंसर एंड पे आ जाएगा, we will be again replacing that t thing with this whole thing. ठीक है जी, let us get started now. अच्छा, ये started नहीं बल्कि this is the part of the equation, right? You have to write it down. After this I'm going to put these all values in the equation. So my equation would become cos of t, c इस पूरे की जगह t, into इस पूरे की जगह 2 dt. Now 2 being constant बाहर आ गया. Now my angle is t into dt. What is the integral of cos t? We all know it is sine of t plus c, right? Now what? Done. Question is done. अब हमने सिर्फ क्या करना है, we will be replacing this t with this value. तो हमारा आंसर बनेगा 2 into sine of radical of x minus x divided by 2 plus c. This is my answer. I hope this is clear, right? Let us go to the next part. Look at this one. Now we all can see that x plus 2 divided by x plus 3, we can convert this thing into something, whenever we have something like this, x divided by radical of x, we all know that this could be converted as, this could be written as radical of x. कैसे? न्यूमिनेटर में जो x है उसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 times radical of x, और डिनोमिनेटर में भी radical of x है, so this would be cancelled out, और ये रह गया मेरे पास. बिल्कुल उसी तरह से what am I gonna do? I'll be trying my best कि ये जो radical of x plus 3 है, ये कहीं ऊपर एक दफ़ा तो सिर्फ खाली x plus 3 बने. See, if I will have something like this,
कैन आई राइट इट एज x प्लस 3 रेडिकल, लिख सकते हैं ना? तो बस वही हम करेंगे ताकि क्वेश्चन आसान हो जाए. आई विल बी एडिंग 1 एंड सब्ट्रैक्टिंग 1 into dx. Okay, now what? This whole thing would become x plus 3 divided by x plus 3 into dx minus this 1 divided by radical of x plus 3 into dx. Let us do the simplification now. What is it? अभी मैंने बताया, तो ये क्या बन गया मेरे पास? रेडिकल ऑफ x प्लस 3 इंटू डी एक्स प्लस, सॉरी माइनस, ये माइनस रेडिकल ऑफ x प्लस 3 हमारा ऊपर आ गया, सो इट वुड बिकम -1/2 इंटू डी एक्स. ओके, नाउ व्हाट? इफ़ यू रिमेंबर फ्रॉम रूल नंबर 1 एंड रूल नंबर 2, रूल नंबर 1 क्या था कि इसका डेरिवेटिव इसके साथ अगर मौजूद है तो x प्लस 3 इज़ इनसाइड. x प्लस 3 का डेरिवेटिव क्या होता है? x का डेरिवेटिव इज़ 1 एंड 3 का डेरिवेटिव इज़ 0, सो इट मीन्स 1 प्लस 0 मीन्स 1. सो इसका डेरिवेटिव इसके साथ मौजूद है. सो ऑल आई हैव टू डू इज़ आई हैव टू ऐड 1 इन द पावर, यानी 1/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1/2 प्लस 1. बिल्कुल उसी तरह से व्हाट एम आई गोना डू विद दिस, इसका जो रेडिकल है, क्योंकि इसके साथ भी इसका डेरिवेटिव 1 मौजूद है, सो ऑल आई हैव टू डू इज़ x प्लस 3 होल रेज टू द पावर -1/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई -1/2 प्लस 1 और ओवरऑल प्लस c. सो इसको आप सिंप्लीफाई कर लेंगे एंड दैट वुड बी योर आंसर. आई होप आई एम अंडरस्टूड. ठीक है जी? ओके, let me show you the solutions now from here. This time should not be here. Okay, now you can take the screenshot. That's it. Okay, now of this, I hope I'm clear. Now let us go to the most important question of this exercise 21, 22, 8ab and 21, 22. ये तो इंतहाई important question है इस exercise के. अब 21, 22, why I chose these two questions as well with these 19 and 20, because you know इसमें जो हम बाकी rules पढ़ेंगे आज, you know substitution method, वो इसमें follow नहीं हो रहा. So that's why I took these separately. Now how can I write this question as, what if I bring this radical of 2 to the denominator? So क्या मैं इसको, जाहिर है इसको रेडिकल ऑफ 2 इंटू साइन एक्स तो नहीं लिखेंगे, हम ऐसे लिखेंगे कि उसमें कोई फ़र्क ना पड़े. सो इट वुड बी दिस वे, राइट? कॉज ऑफ एक्स दिस. Clear? Now what am I going to do? I'll be multiplying this 1/2 with both the terms. Which terms? You know, with sine of x and cos of x. Can I write it as dx divided by, मैं मल्टीप्लाई करने लगी हूँ, मैं पहले लिखूँगी cos of x इंटू 1 डिवाइडेड बाई रेडिकल ऑफ 2 प्लस साइन ऑफ x 1 डिवाइडेड बाई रेडिकल ऑफ 2. बिकॉज देर इज़ नो माइनस साइन, तो हम इसको ऐसे अरेंज करके भी लिख सकते हैं. वाई एम आई डूइंग सो? आई विल बी लेटिंग यू नो. ओके, डी एक्स डिवाइडेड बाई cos of x तो ठीक है. what is 1 divided by radical of 2? I think you should remember that, you know, sine of 45 degree and cos of 45 degree, these both are 1 divided by radical of 2. याद होगा आपको, है ना? So what if, और sin 45, अच्छा 45 को हम कैसे लिख सकते हैं रेडियंस की फॉर्म में? How can we write 45 as, if you remember, we can write 45 as pi by 4, you know. तो pi by 4, cos pi by 4, sin pi by 4, they are both 1 divided by radical of 2. So all I have to do is, you know, I will be replacing this radical of 2 with these two things. अब करना मैंने ये है ताकि मेरी आसानी हो, you know, मैं क्या करूँगी, यहाँ पे I'll be putting it this way. See cos of x as it is into 1 divided by radical of 2 की जगह what am I going to write? Cos pi by 4. pi by 4 का मतलब 45, so वो होता है 1 divided by radical of 2. Done. Next, sin of x into sin of pi by 4. Now you can see which formula is being made here, है ना? फर्स्ट ये जो हमारा था ट्रिग्नोमेट्रिक लॉ जो हमने पढ़ा था फर्स्ट ईयर में, यू नो, वो हमारे पास बन गया, विच वाज cos ऑफ अल्फ़ा माइनस बीटा इक्वल्स टू cos अल्फ़ा cos बीटा प्लस sin अल्फ़ा sin बीटा. तो वही हमारे पास डिनोमिनेटर में बन गया है, फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, सॉरी. सो नाउ इट इज़ इंटेग्रल ऑफ cos x cos, लाइक दिस वुड बी अल्फ़ा, दिस वुड बी बीटा. और आपको याद है cos में क्या होता है, अल्फ़ा यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे फॉर्मूले में माइनस आएगा, सो इट वुड बी x माइनस पाई बाय
4, right? Can you write it as now, sorry, ये 1 over cos क्या होता है हमारे पास, 1 over cos होता है secant, so it would become secant of x minus pi by 4. Now it is very simple into dx. अब secant of x का integral is the easiest one, so that's why we will be converting this into this. यहाँ तक I hope this is understood. You can take the screenshot. Okay, now what is integral of secant of theta या secant of x? ये होता है natural log of secant theta प्लस tan थीटा, मतलब जो भी एंगल है वो प्लस, ठीक है. अब यहाँ पे वी हैड, इफ़ यू रिमेंबर, इंटेग्रल ऑफ सीकेंट ऑफ x माइनस पाई बाय 4 इंटू डी एक्स. नाउ माई एंगल बीइंग दिस वन, what am I going to do? My answer would be natural log of secant of x minus pi by 4 plus tan of x minus pi by 4 plus c. This is the answer. I hope there is no confusion now. ठीक है, that's it. Let us go to the next question, but before that you can check this out. इसको ज़रा देख लें एक दफ़ा. स्क्रीनशॉट ले लें इसका. Okay, next question is this. Very very important, same like 21. अब इसमें मज़े की बात है कि दे हैव गिवन द वैल्यूज़ इन द डिनोमिनेटर ऑलरेडी. ठीक है जी. what do we have to do is we have to convert, we have to write down instead of 1/2 and radical of 3/2, हमें यहाँ पे कोई एंगल लिखना है विद द फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन. ठीक है जी. अच्छा, व्हाट इफ़ मैं चाहती हूँ कि नीचे सीकेंट ही बने अगेन, मतलब लाइक ओवरऑल इट शुड बी सीकेंट और नीचे कॉस का ही फॉर्मूला बने. इट मीन्स लेट मी चेक व्हाट इज़ कॉस, लाइक कॉस का कौन सा एंगल रेडिकल ऑफ 3/2 देता है, क्या साइन का वही एंगल ये देता है. सो लेट मी चेक. ओके, कॉस ऑफ पाई बाय 6 मतलब कॉस ऑफ 30 डिग्री. कॉस ऑफ 30 डिग्री मेरे पास होता है रेडिकल ऑफ 3/2. ठीक है. इसी तरह चेक करते हैं साइन ऑफ 30 डिग्री क्या होता है. 30 मतलब पाई बाय 6 क्या होता है, 1/2. वाओ. सो व्हाट एम आई गोना डू नाउ, आई विल बी रिप्लेसिंग, ये बस थोड़ा याद रख लीजिएगा कि आपकी मर्ज़ी, आप इसको कॉस 60 से भी रिप्लेस कर सकते हैं और साइन 60 से भी रिप्लेस कर सकते हैं. यहाँ पे आपके पास साइन 60 आ जाएगा, फिर फॉर्मूला जो बनेगा वो साइन का बनेगा. मैं चाह रही हूँ सेम उसी बेस पे करें, जैसे हमने 21 किया वैसे हम 22 करें. सो दैट्स वाई आई एम गोइंग टू रिप्लेस इट विद दीज. कॉस 30 होता है रेडिकल ऑफ 3/2, साइन 30 होता है 1/2. सो अब मैं क्या करूँगी, पहले तो मैं इसको अरेंज करके लिखने लगी हूँ, यानी कॉस x इंटू रेडिकल ऑफ 3/2 प्लस साइन x इंटू 1/2. उसके बाद आई विल बी रिप्लेसिंग इट विद dx divided by, now I am going to replace it cos x as it is into radical of 3 divided by 2 की जगह मैं क्या लिखूँगी, cos pi by 6 plus, this is 6 by the way, plus sin x and 1/2, sin x as it is into sin pi by 6. 1/2 की जगह ये देखें, 1/2 की जगह मैंने साइन पाई बाय 6 लिखा. अब डिनोमिनेटर में यू कैन सी फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री बन रहा है अगेन, है ना. सो ये क्या बनेगा, इस डिनोमिनेटर को हमारा क्या बनेगा, डिनोमिनेटर इट वुड बी, कैन आई इरेज इट विदाउट वेस्टिंग माई टाइम, नो दिस कैन नॉट बी इरेज्ड. चलो मैं इसको करती हूँ अगेन. सो इट वुड बिकम dx डिवाइडेड बाय कॉज ऑफ, क्या बनेगा, ये था cos x इंटू कॉस पाई बाय 6 प्लस साइन x साइन पाई बाय 6. तो ये किसका फॉर्मूला बन रहा है, cos ऑफ x माइनस पाई बाय 6. क्लियर. नाउ 1/cos क्या होता है, सीकेंट ऑफ x माइनस पाई बाय 6 इंटू डी एक्स. सिंपली बिल्कुल आपके पिछले क्वेश्चन की तरह, ऑल यू हैव टू डू इज़, ओके व्हाट इज़ द इंटीग्रल ऑफ सीकेंट ऑफ एक्स, इट इज़ नेचुरल लॉग ऑफ सीकेंट एक्स, एक्स आपका क्या है, एंगल, प्लस tan ऑफ x माइनस पाई बाय 6. आपकी बुक में ये क्वेश्चन प्लस सी कोसिकेंट के साथ दिया हुआ है. अगर कोसिकेंट के साथ दिया होगा तो भी इट्स नॉट अ बिग डील. ऑल यू हैव टू डू इज़ यू हैव टू रिप्लेस दिस रेडिकल ऑफ 3/2 विद साइन ऑफ पाई बाय 3 और 1/2 आप रिप्लेस करेंगे cos पाई बाय 3 से.
सो ये साइन का फॉर्मूला बन जाएगा 1/sin, हमें पता है कोसिकेंड होता है तो ये उस तरह भी हो सकता है, ठीक है। बट ये आसान है, 21 22 को आप एक ही फॉर्मूला पे रहने दें। दूसरी बात ये कि ये मैं लिख देती हूँ, इंटेग्रल ऑफ सीकेंड एक्स हमने बार बार इंटू डी एक्स हमने बार बार यूज़ किया, नेचुरल लॉग ऑफ सीकेंड एक्स प्लस टैन एक्स। बिल्कुल इसी तरह इंटेग्रल ऑफ कोसिकेंड एक्स क्या होता है, डी एक्स होता है नेचुरल लॉग ऑफ कोसिकेंड एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस सी, ये भी प्लस सी, ठीक है, ये याद कर लीजिएगा। ओके नाउ, ओके दिस इज़ द सोल्यूशन। इफ़ यू वांट दिस टू बी डन विद कोसिकेंड तो आप ये वाला कर सकते हैं, टेक द स्क्रीनशॉट। Okay, now let us go to the types of substitutions. Number one, very important, but luckily this type of substitution is used in only this question. Question number 8, A part, very important. And for next parts, inshallah, for the next type, inshallah, I'll be meeting you people in the next video. अब इसी को इसमें कर लेते हैं. Okay, first type is this. When you will be having question like, you know, this, what? Variable square minus constant square. A being constant, x being variable. तो आप हमेशा x को रिप्लेस किया करोगे a टाइम मतलब कांस्टेंट टाइम्स सीकेंट ऑफ थीटा। और ये हम क्यों करेंगे, क्योंकि जब हम पुट करेंगे तो ये बनेगा कुछ सीकेंट स्क्वायर थीटा -1 और वो होता है टैन स्क्वायर थीटा, इसलिए ताकि हमारे पास फॉर्मूला बने जनरेट आइडेंटिटी, ठीक है। अच्छा, नॉट जस्ट लाइक दिस इज़ नॉट नेसेसरी कि 1/समथिंग हो, दिस कुड बी लाइक यू नो दिस थिंग, लाइक अगर ये न्यूमिनेटर में ऐसे भी दिया हुआ है, still you would be replacing x with a secant theta. Again, what if you have something like this, x square minus a square into dx, still you will be replacing x with a secant theta. Clear? But in your book you'll be having it in this form, या एक क्वेश्चन एक एग्जांपल आपकी इस तरह से भी है, लाइक 1/, की बजाय ऐसे भी है, सिर्फ रेडिकल इंटेग्रल ऑफ रेडिकल ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और इन ऑल केसेस यू विल बी रिप्लेसिंग x with a secant theta, ठीक है। लेट अस गेट स्टार्टेड नाउ. Question number 8, A part. This is the part in which you have to prove this thing equals to this plus c, right? Let us get started with this. Okay, now integral of dx divided by radical of x square minus a square. What if I replace x with a secant theta? अब मुझे x तो replace करना है, but my whole question would be changed into फॉर्म ऑफ थीटा, बिकॉज मैं x को रिप्लेस कर रही हूँ थीटा में, तो dx को भी चेंज होना चाहिए इनटू फॉर्म ऑफ थीटा. सो वी ऑल नो वी हैव टू टेक डिफरेंशियल ऑन बोथ साइड्स. दिस वुड बिकम dx एंड दिस साइड वुड बिकम a secant थीटा tan थीटा. अब वही बात, डिफरेंशियल्स आपको डेरिवेटिव्स भी आने चाहिए और इंटेग्रल्स भी आने चाहिए. व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ secant थीटा? वी ऑल नो इट इज secant थीटा tan थीटा इनटू, बिकॉज दिस इज डिफरेंशियल तो d थीटा भी साथ में आएगा. नाउ ऑल यू हैव टू डू इज यू हैव टू रिप्लेस वैल्यू ऑफ दिस dx in your equation number 1, this one, and you have to replace x with a secant theta. और बाद में जब आप सारा डन हो जाएगा, you will be replacing your whole like all the terms with theta with x. ठीक है, आंसर्स ऑफ x, यानी इस इक्वेशन से जो x इज इक्वल टू a secant थीटा है, हम इससे हम secant थीटा की बाद में वैल्यू निकाल सकते हैं, एंड दैट वुड बी secant थीटा इक्वल्स टू x डिवाइडेड बाई a. बट ये बात की बातें हैं, लेट अस गेट स्टार्टेड. पुट करना शुरू करते हैं वैल्यूज़. सो दिस वुड बी लाइक यू नो dx would become a secant theta tan theta d theta divided by radical of a secant theta, मैंने x की जगह पुट कर दिया, होल स्क्वायर माइनस a स्क्वायर. नाउ equals to integral of a secant theta tan theta as it is into d theta, and in denominator what am I going to do? This would become a square secant square theta. तो मैं a square कॉमन लेके बाहर निकाल दिया मैंने, तो वो खाली a बन गया, एंड secant square theta -1 is the left over. ठीक है. Now integral of this a and a cancelled out. Now numerator में all I have is, this is integral secant theta tan theta into d theta, एंड डिनोमिनेटर में दिस इज secant square theta -1 रेडिकल, तो वो क्या होता है, इंटेग्रल रेडिकल ऑफ tan square theta बनेगा मेरे पास. मैं उसको डायरेक्ट लिखने लगी हूँ यहाँ पे. इट वुड बिकम ओनली tan theta बिकॉज रेडिकल साइन आपका और स्क्वायर से कैंसिलेशन हो गई. सो नाउ व्हाट डू आई हैव? ठीक है जी, आई हैव tan theta in the denominator and tan theta in the numerator cancelled out. Now I have secant theta d theta. What is the formula of this? अभी हमने डिस्कस किया, नेचुरल लॉग ऑफ
सीकेंट थीटा प्लस टैन थीटा प्लस सी डैश। इसमें आप सी नहीं कहेंगे, सी डैश कहेंगे। क्यों कहेंगे वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। यहाँ तक आई होप दिस इज अंडरस्टूड। नाउ दिस इज माई इंटेग्रल। क्या मेरा यहाँ पे सोल्यूशन हो गया? एक तो हमें नजर आ रहा है वी हैव टू प्रूव दिस थिंग। ना भी बताया होता, वी ऑल नो दैट द आंसर इज नाउ इन थीटा, बट वी वांट द आंसर टू बी देयर इन एक्स। ठीक है, इट मीन्स ऑल वी हैव टू डू इज नाउ वी हैव टू फाइंड वैल्यू ऑफ सीकेंट थीटा एंड वी हैव टू फाइंड वैल्यू ऑफ टैन थीटा फ्रॉम द इक्वेशंस। ठीक है, वो इसमें पुट कर लेंगे, दैट्स इट, प्रूव हो जाएगा। लेट अस चेक इट आउट नाउ। मेरा सोल्यूशन ये आ गया, सीकेंट थीटा प्लस टैन थीटा प्लस सी डैश। ठीक है जी। अब मेरे पास इक्वेशन ये थी, x इज इक्वल टू ए डिवाइडेड बाय ए सीकेंट थीटा। सीकेंट थीटा की वैल्यू तो यहीं से आ गई, सीकेंट थीटा इज इक्वल टू ए डिवाइडेड बाय x डिवाइडेड बाय ए। ये a यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा, x डिवाइडेड बाय a। सो एक वैल्यू तो मेरे पास आ गई, इट वुड बिकम नेचुरल लॉग ऑफ, यहाँ पे मैं पुट कर लूँगी इंस्टेड ऑफ दिस सीकेंट थीटा इट वुड बिकम x ओवर a प्लस। नाउ आई वांट वैल्यू ऑफ दिस टैन थीटा इज वेल। टैन थीटा की वैल्यू हम कहाँ से निकालेंगे? इसी से। आप रेक्टेंगल भी बना के सॉल्व कर सकते हैं टैन थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए, और फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। एंड फॉर्मूला कैसे लगाएंगे हम? वी विल बी टेकिंग स्क्वायर ऑन। अच्छा, दिस वुड बी अ पार्ट ऑफ द क्वेश्चन बाय द वे। ये जो वैल्यूज हम फाइंड करेंगे यहाँ पे करते हैं। ओके, नाउ आई बी टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, सो इट वुड बिकम सीकेंट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर। सीकेंट स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है? 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर। टैन स्क्वायर थीटा इधर ही रहने दें, टेक 1 टू द अदर साइड, सो इट वुड बिकम एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस 1। यहाँ तक क्लियर है? नाउ आई विल बी टेकिंग एलसीएम। टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू आया था मेरे पास एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस 1। आई विल बी टेकिंग एलसीएम, सो एलसीएम वुड बी ए स्क्वायर विच इज़ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब दिस इज टैन स्क्वायर, मुझे टैन की वैल्यू चाहिए, सो दिस वुड बिकम समथिंग लाइक, ओ माई गॉड व्हाट डिड आई डू मैन। ओके, नाउ दिस वुड बिकम टैन ऑफ थीटा बन जाएगा मेरे पास रेडिकल ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए, और ये क्या बन जाएगा मेरे पास? टैन ऑफ थीटा की वैल्यू। ठीक है, टैन ऑफ थीटा की वैल्यू मेरे पास आ गई। नाउ आई विल बी रिप्लेसिंग दिस अलॉन्ग विद द अदर वैल्यू इन द क्वेश्चन। क्या था वो? नेचुरल लॉग ऑफ सीकेंट थीटा प्लस टैन थीटा प्लस सी डैश। नाउ आई एम गोइंग टू पुट माई वैल्यू। सीकेंट थीटा की वैल्यू थी एक्स ओवर ए प्लस माई टैन थीटा वैल्यू जो मैंने अभी आई गॉट इट, that was radical of x square minus a square divided by a plus c dash. अब अगर आप देखो ऑलमोस्ट हमारा क्वेश्चन तो प्रूफ हो गया, बट व्हाट इज द थिंग, you can see these two fractions, these are like fractions, so can I write them as x plus radical of x square minus a square divided by a plus c dash. अब क्या बनेगा? हमें नेचुरल लॉग की प्रॉपर्टी पता है, व्हाट इज दैट? नेचुरल लॉग ऑफ न्यूमरेटर माइनस नेचुरल लॉग ऑफ डिनोमिनेटर, ये a प्लस सी डैश। सब ऑलमोस्ट डन। ठीक है, दिस इज व्हाट वी नीडेड, दिस थिंग प्लस सी, नॉट सी डैश। और हमें ये नेचुरल लॉग तो चाहिए नहीं, नेचुरल लॉग ऑफ ए। सो ये चीज़ और ये चीज़ मिलके, लाइक यू कैन से दैट नेचुरल लॉग ऑफ ए प्लस सी डैश, यू कैन से लेट दिस बी इक्वल टू लेट दिस बी इक्वल टू सी। वाई? बिकॉज नेचुरल लॉग ऑफ ए यानी नेचुरल लॉग ऑफ एनी कांस्टेंट एंड सी डैश, वो भी कोई कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट प्लस कांस्टेंट कोई कांस्टेंट ही होगा, तो हम उसको सी का नाम देने लगे हैं। सो इस पूरे की जगह, इस पूरे जो इनसर्कल मैंने किया, इस पूरे की जगह आप सी रिप्लेस कर दोगे, ये माइनस साइन भी इसी के साथ जाएगा, यहाँ प्लस होगा, सो उसकी जगह पे भी हम सी रिप्लेस कर देंगे, एंड दैट्स हाउ वी विल गेट आवर क्वेश्चन जो हमने प्रूव करना था, रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है जी, लेट मी शो यू द सोल्यूशन ऑफ दिस so that you can take screenshot. Look at this now, this thing be equals to, let this be equals to C1 कह लें, C कह लें, that is your choice, and that's how you proved it. ठीक है, that's it. I'll be meeting you people inshallah in the next video.